Hello, I'm Vandana Saxena, a teacher and educator and a principal of a school, and through this video I'm going to tell you about mentorship. Now the first question that I'm often asked is, are teachers mentors for life? Well, the answer is a definite yes. Because what is the role of a teacher in a child's life? To teach them math, English, Hindi. In today's day and age, when knowledge is just a click away, children can very well learn the content of every academic subject from the internet. Now, what do teachers do? Well, they break down the content in simpler portions, take the child from the easy to the more difficult, and slowly and steadily build the child's understanding so that the child is able to understand and imbibe higher level content with the guidance of the teacher. Now, what happens in the life of a child? If you assume that the life for a child is like a tunnel through which the child walks and cannot see towards at the end of the tunnel, and we have a teacher has a guiding light for the child with a candle, guiding the child at each step, telling them how much to walk, how much effort to be put in, and how to take the next step, but allowing the child to do that himself or herself. That is mentorship. That is the ability and the trust that the teachers have as a relationship which is formed between the child and the teacher. And when I'm asked that, how about when the child leaves the school and moves on to the next phase of the life, the teacher is no longer there. So is every teacher the child meets, is every teacher capable of being a mentor for the child? Well, the child moves into the next stage of the life, but the teacher stays back in the school or the college. So how then the teacher can continue to mentor the child? Well, the answer to this is that the learning from a teacher, or the guidance that we get from a teacher, is not just through their physical presence. Sometimes a sentence sticks by. Sometimes it's just a word. Sometimes it's the teacher's smile. Sometimes it could be a body gesture. Something that triggered the button in the child to take the next step forward, himself or herself. So those words which are passed to us as a baton from one to the other and from the other to another continue to mentor us for the rest of our lives. And dear children, remember, you have an equal role to play in finding your mentors. If you're in a school, teachers will come out looking for you. But for the child who doesn't like to talk, wants to be himself or herself sitting away in a corner, who doesn't want to be disturbed, teacher will reach out to you. But the responsibility for looking for help, finding help, connecting with the teacher remains within you. I want to tell you that know that we can't do everything ourselves. And that's just not restricted to you, my dear children. चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप कभी सैड हो, कभी हैप्पी हो, चाहे आप बहुत हर चीज़ एक मिनट में सीख जाते हो, चाहे हमें कभी कभी वही चीज़ सीखने में एक ज़िंदगी कट जाती है, इन सब चीज़ों से ये नहीं डिटर्मिन होता कि हम में से कौन मेंटरशिप मांग सकता है. हम सब मेंटर्स पा सकते हैं, लेकिन it's like taking the horse to the water, and the horse will only drink water if the horse wants to. So you need to want, and you want to take an initiative at looking for these mentors who remain all around you. And once you find that mentor, life is more joyful, life is more fulfilling, your speed of learning becomes better, your sense of achievement feels better, and you are capable of doing what you are meant to do. और जब मेंटरशिप की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक गाना,
एक बॉलीवुड का एक गाना जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है, वो बार बार आता है। गा तो मैं सकती नहीं, लेकिन गाकर फिर भी सुनाऊंगी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। तो वही इंसान जो जानता है कि मुझे इस समय मदद की ज़रूरत है, वही इंसान वो जानता है कि मुझे इस समय मुश्किल आ रही है आगे चलने में, उसी को मेंटर बोलते हैं। तो वो रिलेशनशिप क्या है मेंटर और मेंटी में? एक रिलेशनशिप ट्रस्ट का, एक रिलेशनशिप जिसमें हम दूसरे से एडवाइस मांगते हैं। तो क्या मेंटरशिप सिर्फ बच्चों को चाहिए होती है, या एडल्ट्स भी मेंटरशिप से बेनिफिट कर सकते हैं? अगर हम सब ये मानते हैं कि हम सब में वो शक्ति है कि हम बहुत ज़िंदगी में बहुत आगे तक चल सकते हैं, हम इस बात को ज़रूर मानते हैं कि हर इंसान में वो इच्छा है जो कभी कभी दब जाती है, ढक जाती है उन मुश्किलों के नीचे, लेकिन हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, जो मैं कर सकता हूं उसको सही ढंग से और सबसे अच्छे तरीके से कर सकूं। अगर हमारा इस चीज़ में विश्वास है तो हमें मेंटरशिप में विश्वास अपने आप आ जाएगा। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब हम अकेले तो जीते नहीं। जिस दिन से हम पैदा होते हैं हमारे आसपास माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो वो एक कम्युनिटी है, हमारी कॉलोनी एक कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी एक सिटी में बदलती है, सिटी कंट्री में बदलता है, एंड द कंट्री चेंजेस टू द वर्ल्ड। सो इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो क्यों हम ऐसी कोशिश करें कि हर कुछ अपने आप ही करना चाहें? जिस समय हमें मदद की ज़रूरत है तो मांग लेना मदद। तो लेकिन ढूंढना कैसे है? एक सही इंसान की परख हमें कैसे आएगी? सबसे पहले ज़रूरी है हमें इस बात की क्लैरिटी कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। और जब वो क्लैरिटी हमें आ जाएगी तो हम अपने आसपास मेंटर्स को स्वयं ही खोज लेंगे। बच्चों, आपके घर में आपकी माँ आपकी सबसे पहली मेंटर है। आपके पिता, माता पिता दोनों ही पेरेंट्स आपके मेंटर हैं। उन्होंने आपको बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी हैं जो हमेशा अनकंडीशनल लव के थ्रू आती हैं, और वह हमेशा आपकी तरक्की तक आपको लेके जाती हैं। लेकिन समटाइम्स इन लाइफ एज यू ग्रो अप यू नीड मोर मेंटर्स दैन योर पेरेंट्स। ऐसे मेंटर्स जिनको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में पता है, जिनको पता है कि जिस उम्र से आप गुजर रहे हो उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो उस समय मेंटर्स आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेंटर्स को पाना, मेंटर से रिलेशनशिप बनाना, ये आपके हाथ में है। स्कूल में आपको टीचर ज़रूर आकर खोजेंगी और चाहेंगी कि आप एटलीस्ट जो कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो टीचर्स आपके पास आएंगी, आपसे बात करेंगी, जानेंगी आप क्यों सैड हैं, आप इस स्पीड पे क्यों नहीं लिख रहे, आपको क्या समझ में आया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये जिम्मेवारी मेंटरशिप पाने की और उसको आगे ले जाने की आप पर भी डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हो कि आपने आगे बढ़ना है, बिलीव मी, the responsibility for your personal growth resides within the individual itself. तो आप खुद अपने मेंटर्स को सोर्स कर सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द सब जगह घूमते हैं। कभी कभी वो मेंटर आपका दोस्त हो सकता है, कभी कभी वो मेंटर एक किताब हो सकती है, कभी कभी वो मेंटर एक गाना हो सकता है, कभी कभी मेंटर वो एक शब्द ही हो सकता है। और ऐसे शब्द जो आपके साथ ज़िंदगी भर चलते हैं, ऐसे शब्द जो आपका साथ देते हैं जब कभी कभी आप आकर किसी पॉइंट पे अटक जाते हैं। तो अटके हुए को आगे चलाने के लिए वो मेंटरशिप का रूप आपके सामने स्वयं ही निकल कर आ जाता है और आपको ले जाता है एक ऐसे रास्ते पर जिस पर आप अपने रियल फॉर्म में और अपने फुल कैपेसिटी में, अपने फुल पोटेंशियल के साथ ब्लॉसम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं और इवॉल्व कर सकते हैं।
बच्चों, आपको मालूम है कि न कि टीचर्स ही आपके मेंटर होते हैं, आप भी टीचर्स के मेंटर्स हो सकते हो। द टीचिंग प्रोसेस इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक हाथ दीजिए और एक हाथ लीजिए। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को अपने साथ कर लेकर चलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको जानने के लिए, इसको आप किसी को पढ़ा दीजिए। क्यों, क्या होता है टीचिंग में? ऐसी क्या चीज़ है जिससे दोनों तरफ ही लर्निंग होती है? एक तो एक कॉन्सेप्ट को सिंपलर छोटे छोटे पोर्शंस में काट देना, बांट देना, और उस कॉन्सेप्ट को सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स में अरेंज कर पाना, अपनी ही मेटाकॉग्निटिव स्किल्स के अनुसार, अपने ही थॉट प्रोसेस के अनुसार, वो होता है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो जब टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं या कोई भी बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक मेंटल प्रोसेस होती है टीचर में, जिसमें वो कंटेंट को इस सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। तो इस टीचिंग लर्निंग की वजह से तो सबसे पहले टीचर को उसको खुद ही पूरी तरह समझना पड़ता है, और वो समझना पड़ता है क्योंकि टीचर ने आपको वो पढ़ाना है, इसीलिए आप हो गए टीचर के मेंटर। दूसरी बात, कभी कभी टीचर की सिखाई हुई विधि आपको समझ नहीं आती, तो उस क्षण आपने उठकर ज़रूर टीचर से पूछना है, सवाल करने, बोलना मुझे नहीं समझ में आया, किसी और तरीके से समझाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप बन गए टीचर के मेंटर, क्योंकि अब टीचर क्या करेगा, एक फिर से चक्री चलाएगा, उस कंटेंट को अलग सीक्वेंस में अरेंज करेगा, अलग एग्जाम्पल्स देगा, और फिर क्योंकि टीचर का तो कि ये कोशिश रहेगी हमेशा कि मेरी कही हुई बात हर बच्चे तक पहुंच जाए, और उसमें आपने अपने टीचर की मदद करनी है। यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी, जब आप अपनी टीचर की इस तरह मदद कर रहे हैं तो टीचर की टीचिंग स्किल बढ़ रही है। और इस समय बच्चों को कौन टीच कर रहा है, उनकी टीचिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए आप। तो यहाँ पर आप टीचर्स के मेंटर हो गए। और दूसरी बात, कभी कभी टीचर्स आपसे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, पर्सनल प्रॉब्लम्स केवल आप ही की नहीं होती, हमारी भी होती हैं। जब हम आपस में एक दूसरे की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक दूसरे के फिर से मेंटर बन जाते हैं। जैसा होता है एक रिले रेस में, मैंने आपको बेटन दिया, आपने आगे बेटन दिया, और इस तरह से वो ज़िंदगी की रेस आगे बढ़ जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मेंटर्स ढूंढने की और मेंटर्स बनने की जिम्मेवारी हम सब पर है, हम सब के कंधों पर बैठती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चा हो, और चाहे वो प्रिंसिपल हो। तो एक अंदर से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लेकर चलिए। मुझे प्रॉमिस कीजिए कि ये जिम्मेवारी अपनी प्रोग्रेस की, अपनी तरक्की की, कि ये फैक्ट कि आपको आगे बढ़ना है, इवॉल्व होना है, और जो आप कर सकते हैं उसको सबसे अच्छे तरीके से कर पाएँ, वो जिम्मेवारी हम सब स्वयं ही उठाएंगे। और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमें मिलेंगे मेंटर्स, और खोजेगा कौन उन मेंटर्स को? हम अपने आप। तो आइए इस चीज़ को सम अप करते हैं कि मेंटरशिप होती क्या है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप बार बार एक किताब को खोलकर पढ़ते हैं, जिस क्षण में आपको परेशानी आती है, कठिनाई होती है? मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मेरी एक फेवरेट बुक है, उसको मैं बार बार खोलती हूँ, उस पेज पे कभी कभी कुछ शब्द लिखे होते हैं, उससे मुझे समझ में आ जाता है कि आगे करना क्या है। तो ऐसा क्या है उस किताब और मुझ में? सबसे पहली बात है एक ट्रस्ट। मेंटरशिप में एक ट्रस्ट फैक्टर सबसे पहले आता है। दूसरी बात, हम क्या खोज रहे हैं, उस किताब से मैं क्या खोज रही होती हूँ जब उसको देखती हूँ, क्योंकि मैं इस समय आके अटक गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे आगे करना क्या है, तो मैं उस किताब से, उस पेज से एडवाइस मांग रही हूँ। तो मेंटरशिप का दूसरा एलिमेंट होता है एडवाइस, ट्रस्टेड एडवाइस, इसको बोलते हैं मेंटरशिप। और हमें मिलेगा कहाँ से? हमें मिलेगा सबसे पहले तो अपने घर में, हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे पहले मेंटर्स हैं। दूसरा, हमारे फ्रेंड सर्कल में, ऐसा फ्रेंड जो हमेशा आपको सही रास्ते पर लेके जाता है और आपकी बात को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुनता है, जिसमें ना वो अपनी जजमेंट डालता है, ना वो अपनी इमोशंस लेके आता है, लेकिन आपकी बात सुन ही लेता है। कभी कभी आपकी बात सुनते सुनते जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि आगे मैंने क्या करना है।
और मेंटर्स आपको कहाँ मिलते हैं? स्कूल में। टीचर्स आपके मेंटर्स हैं, वो आपके लाइफ मेंटर्स हैं। बल्कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मैं क्लास 8 में थी, तो मेरे गुरुकुल के एक आचार्य थे जिन्होंने मुझे मेंटर किया। उन्होंने मुझे गीता के कई अध्याय पढ़ाए, संस्कृत के श्लोक रटवाए, और स्कूल में अक्सर स्टेज पे खड़े होकर मैं मंगलाचरण किया करती थी। उस समय क्लास 8 में बहुत साल पहले की बात है, और उनकी कही हुई बात मेरे दिल में और दिमाग में घर कर गई। और आज स्कूल में जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, वहाँ पर वेदा चैंटिंग हम लोग अक्सर मॉर्निंग असेंबली में और क्लासेस में करवाते हैं। तो वो मेरे मेंटर हैं। आज वो मेरे साथ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है मेंटर आपके साथ ज़िंदगी भर चलेगा। मेंटर की कही हुई बातें आपके दिल और दिमाग में घर कर जाएंगी, और वो आपको ज़िंदगी भर गाइड करती रहेंगी, आप एक प्रोफेशनल स्पेस में और ऑल्सो आपकी प्राइवेट लाइफ में। तो मेंटरशिप के साथ और क्या चलता है? एक बहुत गहरी एडवाइस, एक विजडमफुल बात जो आपको उस समय समझ में आई और आपने उसको बार बार यूज़ किया। और आखिरी चीज़ मेंटरशिप को लेकर, और बहुत ज़रूरी चीज़ जिसको आप ध्यान से सुनना, अब ये किसी की जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपको बार बार आके बताएगा इससे मेंटरशिप ले लीजिए, उससे मेंटरशिप ले लीजिए। मेंटरशिप आपको एक एकेडमिक करिकुलम के पढ़ाने के बराबर नहीं है। मेंटर्स ढूंढना तो आपकी खुद जिम्मेवारी है। जैसे कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं क्लास में, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये जिम्मेवारी बच्चों हम सब की है, ना केवल आपके टीचर्स की, प्रिंसिपल्स और टीचर्स की, बल्कि आपकी अपनी जिम्मेवारी है। जिस दिन आप जिम्मेवारी को समझ जाओगे, तब आपको अपने आसपास घूम रहे मेंटर्स नजर आएंगे। आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कौन सा मेंटर किस समय काम आएगा। तो फिर आप उस समय मेंटर को खोज लीजिए और चल पड़िए आगे ज़िंदगी में एक मोर फुलफिल्ड, हैप्पी और एक ऐसी लाइफ जिसमें आप हमेशा और हमेशा अपने लिए ही स्पेशल हो सकते हैं और उसी तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ा